Hi guys, it's a pleasure speaking to you guys again. We are forever thankful to you for your wonderful support to us, to our channel till now. So I'm Disha Jain from Rodis Realtors. Most of our investors who have actually bought properties in Dubai, they have started making their returns twofold, threefold returns. सो आज बहुत स्पेशल डे है बिकॉज आज हम आप लोगों को दुबई रियल एस्टेट मार्केट में किस तरह से आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद में एक राइट प्रॉपर्टी में एंटर करके किस तरह से आप एग्जिट कर सकते हैं विथ 100% रिटर्न्स, 200% रिटर्न्स, उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन. सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्राइवेट डेवलपर्स गाइज, इवन गवर्नमेंट ऑफ UAE, they are also very aggressive, very keen on bringing out new developments to the empty plots. What they are trying to do is, before the Etihad rail is fully functional, although it is already functional for commercial purposes, trade purposes, so the government now is basically planning कि Etihad rail के शुरू होने से पहले, नई मेट्रो लाइंस के आने से पहले जितने भी empty plots हैं उन्हें cover किया जाए. Okay, so that gives you a wonderful chance as an investor to invest in Dubai again. Okay, previously when people bought something in Dubai, like when they booked their properties nearby metros, so they used to have that confidence कि metro के पास की property है तो वो grow करेगी. बट पिछले कुछ सालों में, 5 से 6 सालों में, लोगों ने ये देखा कि मेट्रो के पास वाले प्लॉट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, ऑलरेडी प्रॉपर्टीज सोल्ड आउट हो चुकी हैं. एंड वी हैव ऑल्सो, सिंस वी आर इन द मार्केट फॉर सो लॉन्ग, वी हैव ऑल्सो सीन व्हेन डेवलपर्स कम नियर metro stations, like Danube came up with base 101 nearby Business Bay metro station. It was sold out in an hour. Okay, same with Damac. When they announced their townhouses in Riverside last year, they sold in like 12-15 minutes. Okay, same is going to happen with their Damac Riverside Views apartments, for which we have already registered our expression of interest. So you need to contact us now if you want to get an surety for your unit allocation also. So there are very many projects like Etihad Rail, like the Brown Line metro station, like your Yellow Line. The expansion of metro is going to be towards all the communities, and the communities which are nearby your Etihad Rail, they are going to boom like anything. The new airport is almost functional, commercially functional hai. They are going to make it like as the world's largest international airport. They are going to expand their duty free zone as the world's largest duty free center. Then they are going to come up with Yuvu Mart. They are going to come up with Bharat Mart. So countries, it's not just people, now countries, prime ministers of China, India, all of them are coming and incorporating their funds in UAE. So what are you waiting for? Today we will try our best to enlighten you with why you need to invest in Dubai, कैसे आपका पैसा पड़ेगा, and किस तरह से we as realtors can assist you and guide you through that. Okay, so it is not just about buying at the right time, it's also analyzing, keep on analyzing the market trends. It's also understanding the opportunity at the right time. Like people who bought in Dubai 20 years back, again they are trying to, if you have that kind of mindset to make 500 600x returns, so for you Ras Al Khaimah is the new Dubai. So I'll try my best to enlighten you how Ras Al Khaimah is actually a hidden gold mine for you guys, so that you know in lesser you can book your property for now, and once the Wynn Casino comes in Ras Al Khaimah, your money, oh god, it's going to boom like anything. So my colleague Sitaram will guide you throughout it now. सो हाय गाइस, जैसे आपको दिशा ने पूरी तरीके से दुबई का एक जिस्ट दिया था, एग्जैक्टली हाउ दिस दुबई मार्केट इज़ एनहांसिंग देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और किस तरह से ये पूरा मार्केट बन रहा है अभी के टाइम पे. एंड इट्स स्टिल नॉट वेरी लेट टू एंटर इनटू दिस मार्केट, बिकॉज 20 साल पहले दुबई वॉज अ ड्रीम फॉर मैनी पीपल. नाउ इट्स अ रियलिटी फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम.
उन्होंने जो 20 साल पहले सोचा था कि रेगिस्तान में बनेगा क्या, वहाँ पे दुबई गवर्नमेंट ने with all the help of investors and the developers over here, they have delivered everything, and that's why this is one of the most favorite tourist destination of all the countries, all the people, and not only for the tourism but जिस तरह से business opportunities यहाँ पे हैं, employment opportunities यहाँ पे हैं, जिस तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं to be the residents of this city, this is something which is unparalleled to any other destination in this world. So आज के इस वीडियो में we are going to discuss about very few aspects of Dubai real estate market, how exactly as an investor and user आप इस market से अपना portfolio elevate कर सकते हो, कैसे आप enter कर सकते हो, be it you are in Dubai, be it you are outside Dubai, India, पाकिस्तान, कोई भी मुल्क में आपको जहाँ से आप यहाँ पे कैसे एफिशिएंटली इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपके लिए एज ए इन्वेस्टर एंड एंड यूजर इंपॉर्टेंट है, हम वो आज डिस्कस करेंगे एंड आई मेक श्योर कि मैं बहुत इजीली आपकी तरफ ये मैसेज पहुँचा पाऊँ, ताकि जब भी कभी आपको कोई भी कंसर्न होगा अबाउट दिस रियल एस्टेट मार्केट, you will be the person who will understand and know every single aspect of that. So stay on to this video till the last part so that आपको पूरी तरीके से दुबई रियल एस्टेट पता हो. And thank you so much for the previous videos, love the support you guys have shown me, and that has motivated us to make sure कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आए जिसकी तरह से आपको दुबई के बारे में, दुबई के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो. So let's start directly towards the video itself. So let's start directly with Dubai real estate. What exactly is Dubai real estate? किस तरह से यहाँ पे काम होता है एंड क्यों किसी को दुबई में इन्वेस्ट करना चाहिए. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि दिस इज़ द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. आज के टाइम पे मुझे अब मेरी फैमिली के साथ लगभग यहाँ पे 4 साल हो गए, कोविड के बाद मैं यहाँ पे आया था, बट जो एक्सपीरियंस मेरी फैमिली का इंडिया में था, जो एक्सपीरियंस यहाँ पे है इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट. जो लाइफस्टाइल चेंज हमने देखा है, जो सिक्योरिटी हमने देखी है, स्पेशली द वुमेन ऑफ माई फैमिलीज, दे कैन रोम अराउंड द सिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड विदाउट एनी फियर इन देयर माइंड, एंड दैट्स व्हाट दिस सिटी हैज़ इनकलकेटेड इन मोस्ट ऑफ दिस पीपल. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इकोनॉमी जिस तरीके से दुबई की बढ़ रही है, हम नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि दुबई ने कौन से ऐसे प्लान्स है जो इन पोजीशन लाए हैं जहाँ से वो ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जिस तरह से वो लोग करना चाहते हैं फ्यूचर में, उसका प्लान्स उन्होंने कई साल पहले ही बनाया था. एंड वो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स को समझने के लिए, बिकॉज अगर आप चाहते हो कि आप दुबई आओ एंड इस रेवोल्यूशन का पार्ट बनो और इसके साथ जुड़े रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि आज क्या है, कल क्या था और आगे होने क्या वाला है. तो ये जो इकोनॉमी का पार्ट है, देखिए टूरिज्म पे पूरी इंडस्ट्री नहीं चलती एंड दुबई को ये बात पहले से पता थी. जब उनके पास ऑयल डिस्कवर हुआ था 1966 में, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, बिकॉज रिजर्व्स बहुत कम थे. तो उन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्री पे फोकस किया. जैसे ही टूरिज्म का एलिवेशन होना स्टार्ट किया हुआ, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल लोगों को दिखाना स्टार्ट किया और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया. बहुत स्मार्टली, बहुत इंटेलेक्चुअली उन्होंने पूरे प्लान्स बनाए एंड उस वजह से ही आज दुनिया का भरोसा दुबई रियल एस्टेट मार्केट पे है. तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है आपका कैपिटल अप्रिसिएशन. आज के दुबई के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में जिस तरह से प्रॉपर्टीज़ के नए नए ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, एंड आपको हर तरीके का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है. समवन हु इज़ फैंसी ऑफ बीच फ्रंट अपार्टमेंट्स एंड बीच फ्रंट लिविंग, दे हैव देयर ऑप्शन. समवन हु इज़ लुकिंग फॉर समथिंग इन अ कमर्शियल सेक्टर, दे हैव देयर गुड ऑप्शन. Someone who is looking for like starting their own businesses, starting their own employments, they have good options over here. So with every single option who is coming into the picture, people have the aspect of to see the capital appreciation they can expect in the future. And जो investments के तरीके हैं वो भी बहुत easy है. यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से रुकावट नहीं है. टैक्स फ्री जोन होने की वजह से यहाँ पे आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट्स करने में किसी भी चीज़ के बारे में 10 बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बहुत इजीली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और एक लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. ऐसी नहीं कि किसी ने बस इन्फ्लुएंसिंग के मार्केट में डाल दी कोई चीज़ कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, वैसे नहीं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि आपकी ओनरशिप, अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर हो तो आपकी ओनरशिप किस तरह की है. इज इट एन लीज होल्ड ओनरशिप और अ फ्री होल्ड. तो आज के टाइम पे जो भी कम्युनिटीज़ यहाँ पे लॉन्च हुई है, जिस तरह से यहाँ का डेवलपमेंट हो रहा है, ऑल दोज आर फ्री होल्ड ओनरशिप्स. सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इनटू दिस मार्केट, बिकॉज दे विल गेट द 100% ओनरशिप ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. इवन समवन हु इज लुकिंग टू स्टार्ट देयर बिजनेस,
UAE today ranks 16th in terms of doing business, ease of doing business over here, and it will gradually ladder up to the position of one in very few years. And that's a very important point for you if you are someone who is looking to start their business and they want easy connectivity towards the world, because आज के टाइम पे दुबई से किसी भी कंट्री में जाना बहुत ईजी है. मिनिमम 3 घंटे से लेके 10 घंटे तक का टाइम लाइन में यू कैन रीच आउट टू एनी सिटी. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आपका जो गोल्डन वीजा बेनिफिट्स है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वीजा. यू हैव इन्वेस्टर्स वीजा, यू हैव योर golden visa benefits, and because of these benefits itself you can live the life of a very humble resident over here in Dubai, and with these benefits आपके जो सारे गोल्स हैं you can achieve them very easily, and the connectivity as I mentioned it. अब हम डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट प्लान्स दुबई गवर्नमेंट के तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं टू मेक श्योर इन्वेस्टर्स का एक कॉन्फिडेंस बना रहे. एंड दीज प्लान्स आर नॉट मेड टुडे. These plans were made 20-30 years back when the entire development was happening across Dubai. और ये planned development, it's not something कि randomly उनके दिमाग में एक thought आया और उन्होंने कुछ development करना start किया. No. Even if अभी के टाइम पे जो हमारा major focus है, that is D33 economic agenda and Dubai 2040 urban master plan. Now these two things are very important for the investors and end users to understand, because with D33 economic agenda, their motive is to double their economy by 2033, and for that they are doing everything possible in their ways, be it increasing the connectivity efficiency towards city by introducing new metro lines, by introducing Etihad rail, by introducing new roads, multiplying the wavelength of the road, by making sure that new businesses can start in Dubai too, so that many new free zones are getting introduced, like Jebel Ali free zone, Dubai airport free zone, Dafza, and a new free zone which is coming in Dubai South. So this motivates people to start their businesses. एंड दुबई 2040 अर्बन मास्टर प्लान आपको ये मोटिवेशन देता है कि किस तरह से आपकी लाइफस्टाइल एलिवेशन होगी दुबई में. जो सस्टेनेबिलिटी है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, किस तरह से वो लोग एनहांस करना चाहते हैं. और इसके बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स हैं यहाँ की कम्युनिटी लिविंग स्ट्रक्चर्स. पहले दुबई लोग जानते थे एक स्काई स्क्रेपर्स की दुनिया, जहाँ पे आज हम मेन जो शेख जायद रोड है वहाँ पे देखते हैं कि सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं 30-40 फ्लोर्स की. वहीं पे आज दुबई जैसे ही आप आगे जाना शुरू करोगे तो कम्युनिटी लिविंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी, अ सिटी इनसाइड अ सिटी विच हैज़ एवरीथिंग फॉर यू. यू हैव स्कूल्स, यू हैव हॉस्पिटल्स, यू हैव connectivity with the roads, public transport, you have private transport industry, you have let's see what we call different residential options in villas, townhouses, so low rise community. एक ही सिटी में जहाँ पे सिटी लाइफ एंड कंट्री साइड लाइफ आपको एक ही जगह पे मिले, वैसा ऑप्शंस दुबई ने इंट्रोड्यूस करना शुरू किया. और वो आपको बेसिकली इस तरह से मोटिवेट करता है कि आज जो पॉपुलेशन दुबई की है, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डबल दैट पॉपुलेशन बाय 2040. सो और नए लोग आएंगे और नई तरीके से ये पूरी सिटी बनेगी, और उस वजह से आपका बिजनेस भी उतना ही ग्रो करेगा. सो D33 एंड 2040 अर्बन मास्टर प्लान गोज हैंड इन हैंड. इट्स नॉट लाइक बोथ आर having their separate ideology to look forward to, but both are having the same ideology to make sure Dubai is becoming the number 1 city in this world. ये इस स्लाइड में आप बेसिकली वो कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं. जैसे पिछले साल का अगर हम डेटा देखें तो रिकॉर्ड्स ऑफ 1,42,000 millionaires are expected to relocate to UAE and Singapore. Now these two locations are very famous for the investors and millionaires, HNIs basically. So now these guys are planning to move to these cities, and last year itself the number was for UAE was at the rank 1. UAE stood at rank 1 for having many millionaires relocating themselves into this city. Emirates जो सबसे बड़ी एयरलाइन है आज के टाइम पे, they are moving their all operations towards Al Maktoum International Airport, which is going to be one of the largest airport in the world. Mohammed bin Rashid, His Highness has approved new master plans for this Al Maktoum International Airport, because इस एयरपोर्ट से बेसिकली हर साल more than 260 million passengers ट्रैवल करेंगे. 400 गेट्स होंगे, 5 रनवेज होंगे. तो क्या जो ट्रैफिक आप आज के टाइम पे दुबई एयरपोर्ट पे देखते हो, उससे 3 गुना ज़्यादा ट्रैफिक आप फ्यूचर में देखोगे, मतलब उतने ज़्यादा लोग आएंगे. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने शुरू की कि जैसे आज हम ओल्ड पार्ट ऑफ दुबई में जाते हैं, इट्स डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, तो उस एरिया को कार फ्री जोन्स बनाने के लिए कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी कि दुबई जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट थी 2025, उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि इलॉन मस्क इज गोइंग टू डिज़ाइन दी कार लूप्स, अंडरग्राउंड कार लूप्स
to make sure these car free zones are totally done in these areas. So वहाँ पे on the route आपको कोई भी तरीके से कोई कार नहीं होगी, सारे कार्स अंडरग्राउंड जाएंगे, तो जो ट्रैफिक है आज के टाइम पर उस एरियाज में वो कम हो जाएगा. ऑल्सो उन्होंने नॉर्थ साइड में एक सबसे बड़ा टॉलेस्ट रिसॉर्ट इंट्रोड्यूस किया है. सो ये जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ बेसिकली ये आपको जानने के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप ये यहाँ पे बस एक अपार्टमेंट नहीं बाय कर रहे हो, यहाँ पे आप एक बस टाउन हाउस या विला नहीं बाय कर रहे हो. यू आर बाइंग इनटू अ प्लेस जहाँ पे गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग श्योर दे आर ब्रिंगिंग न्यू गाइडलाइंस, न्यू डेवलपमेंट्स अक्रॉस द सिटी, जिसके वजह से आपका जो प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन है वो बहुत ईजिली हो. आपकी जो लाइफस्टाइल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो दुबई में वो बहुत ईजी मूवमेंट से हो. So this is very important for you guys as well to understand. Now let's come to the most important part. As an investor, what is the right choice? What is the smart investment for you? And there are two options. There are always two options. One is off plan, which is under construction, and second one is ready to move in. Now handover for off plan properties basically depends developer. यहाँ पे आपको मिनिमम 2 साल से लेके 4 साल तक का पीरियड मिलता है जहाँ पे आपको आपका प्रॉपर्टी का हैंडओवर मिल जाता है. whereas ready to move in is something which is immediate. You directly go and stay over there. whereas prices, if you compare in both these things, हर एरिया का एक सर्कल रेट होता है, उसके बेसिस पे रेट टू मूव इन प्रॉपर्टीज के प्राइसेस जस्टिफाई होते हैं. वेराज ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज मार्केट रेट से कम रेट में बिकती है बिकॉज वहाँ पे एक एंट्री प्राइस मिलता है इन्वेस्टर को या फिर एंड यूजर को टू एंटर इनटू द मार्केट. यू हैव अप्रिसिएशन स्कोप इनटू दिस. किस तरह से आपका अप्रिसिएशन स्कोप होता है? बेसिकली जब आप एक ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, आप ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करते हो जो अभी डेवलप हो रहा है. सो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहेगी वैसे वैसे आपका प्राइस अप्रिशिएट होगा. तो आपके पास जितना टाइम जोन में आप पूरा पेमेंट प्लान कैरी आउट करते हो उस टाइम जोन में आपका प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन एट अ वेरी स्टैगरिंग ग्रोथ होता रहता है. एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह होती है कि जब कोई एक नया लॉन्च आता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो फर्स्ट बायर होता है उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, whereas the last buyer has the very least benefit. So आज के टाइम पे जो भी आप लॉन्चेस दुबई में देखते हो, आपने देखा होगा कि these launches are getting sold out in just minutes and hours. Last launch which we saw, the Mac Islands, got sold out in 10 hours. 10 hours में 10 billion worth of inventory was sold in the market. That's how crazy this market is going upon. सो आज के टाइम पे लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज उनको पता है प्राइसेस बहुत कम है. यू कंपेयर टू एनी अदर सिटी. आई एम फ्रॉम इंडिया. इफ आई कंपेयर दिस प्राइसेस पर स्क्वायर फीट रेट टू इंडियाज मुंबई, बैंगलोर, न्यू दिल्ली, गुड़गांव, we are still way below the price ranges we are giving over here. And the kind of lifestyle you can compare with both the countries, you will understand जिस तरह का यहाँ का lifestyle है, you will never find this kind of lifestyle in anywhere in the world. But whereas in ready to move in properties, बात ये होती है कि जब एक प्रॉपर्टी बन के रेडी हो जाती है तो उसका सैचुरेशन हो गया. अब वहाँ पे जो डिमांड रेडी होने के बाद जनरेट होगी और जो डेवलपमेंट बनेगा उसके बेसिस पे उसका बेसिकली व्हाट वी से अप्रिसिएशन होगा. तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज को वो लोग ऑप्ट करते हैं जो लोग को एंड यूज पर्पज है, जिनको अभी जाके शिफ्ट करना है. बिकॉज अभी के टाइम पे दुबई में रेंटल्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि मैं पिछले 15-20 साल से जो रेंट पे कर रहा था उससे अच्छा यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लूँ. एंड दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू गो फॉर रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज. बट द पेमेंट स्ट्रक्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वहाँ जाके सबसे बड़ा डिफरेंस आपके लिए बनता है. बिकॉज ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज में आपको विदाउट इंटरेस्ट डेवलपर के डेवलपर की तरफ से आपको एक इजी पेमेंट प्लान मिलता है जहाँ पे आप 1% पर मंथ, post handover payment plans, 3 to 8 years long payment plan without any interest you can pay. Whereas in ready to own properties, either you have to be ready with the entire cash 100% or you need to take a mortgage. And mortgage का जो interest rate है, it is varies from 3.8 to 4.5%. So again, अगर आप investor हो, ready to own property में पैसा डाल रहे हो using the mortgage, तो आपका जो रेंटल इनकम आएगा 6 to 8%, वहाँ पे अगर आप 4.5% का इंटरेस्ट ही पे कर रहे हो तो आपका अगेन जो फाइनल ग्रेड बनता है जहाँ पे इवेंचुअली आपका what we say margin बनता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो 2 से 3% का बचता है. तो इट मेक्स नो सेंस फॉर द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इनटू रेडी टू ओन प्रॉपर्टीज. रादर यू गो फॉर एन ऑफलाइन प्रॉपर्टी, टेक द प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन एंड देन पुट इट ऑन रेंट. बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पहले ही अचीव कर चुके होगे 30 to 35% अप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड उस बेसिस पे आप रेंटल भी उस टाइम पे ले सकते हो. जैसे हमने अभी डिस्कस किया, व्हाट आर द बेसिक ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ऑफलाइन प्रॉपर्टीज इज 0% इंटरेस्ट. जो पेमेंट प्लान आपके पास होता है उसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना है. पेमेंट प्लान्स बहुत कंफर्टेबल है. यू हैव 1% पेमेंट प्लान, यू हैव पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान्स, यू हैव 3 to 8 years of long payment plans and there is no interest. So that helps you in terms of managing your funds, liquidating your equity over the period of time without even worrying about the interest you can get charged against that particular payment. Third most important aspect is the modern amenities you get.
जो पुरानी बिल्डिंग्स आज हम दुबई में देखते हैं और जो आज नए लॉन्चेस आ रहे हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड उसमें जिस तरह की एमिनिटीज़ है, इन्फिनिटी पूल्स, योगा क्लब्स, जिम्स, the big collaborations these developers are doing. That Sobha is having one of the projects in Motor City. They have done collaboration with Arsenal. MR has collaborations with Address, Palace, Vida, Bristol, Grove Hotels, Paramount Hotels. You have Marriott Hotels over here. You have collaborations with very big brands. Tamag is having collaboration with Trump. So Trump Towers, Trump Golf Club is there in Tamag's communities. Bentley के साथ Bugatti Residences by Binghatti, then you have Jacob and Co Residences by Binghatti, Mercedes Residences by Binghatti. This is something which is very new, very fresh and for the very first time coming in the market. So off plan में ये आपका बहुत बड़ा benefit है कि you get the modern amenities to live in. Secondly, रेरा एंड डीएलडी की वजह से होने की वजह से आपको जो डिलीवरी आपकी प्रॉपर्टी की मिलती है, इट्स ऑन टाइम, देयर इज नो डिले ओवर देयर. Just because you're buying at the earlier stage, the return on investment becomes higher because as the development happens, the property gets a good appreciation over the years. The location becomes prime when the saturation comes in the market, when the properties are getting handed over, and it's an affordable luxury for you when you're buying at the very early stage. So these are very key aspects for you to look after when you're considering an off-plan property. Now, ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में भी दो ऑप्शंस आपके पास आते हैं. ईदर यू कैन इन्वेस्ट इनटू अ स्टैंड अलोन टावर और यू कैन इन्वेस्ट इनटू अ कम्युनिटी. जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में एक डिफरेंस बताया था. अब उसमें क्या बेसिकली डिफरेंस है वो आज हम समझेंगे. इन स्टैंड अलोन टावर्स you have an independent property or a building, whereas in community you have a master plan mixed use development. जब आप एक मास्टर प्लान में इन्वेस्ट करते हो, उस मास्टर प्लान में आपके पास हर एक चीज़ उस कम्युनिटी में होती है, बीट स्कूल, बीट हॉस्पिटल्स, बीट कनेक्टिविटी विद एनी अदर रोड्स, मॉल्स, the hospitality areas, everything is inside the community. So someone who is staying with their families, it's the best place to stay inside a community and makes more sense because in a community you get appreciation organically. एंड पूरा जो होल्ड होता है उस प्राइस का एंड द मेंटेनेंस एंड द स्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज विद वन डेवलपर ओनली. सो जब एक इन्वेस्टर भी एंटर करता है एक कम्युनिटी में, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे पता है कि कल चाहे कितना भी मार्केट फ्लक्चुएशन आए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी कम्युनिटी का रेट कभी नीचे नहीं जाएगा बिकॉज उसकी कम्युनिटी बाकी स्टैंड अलोन टावर से बहुत अलग स्टैंड करेगी बिकॉज उसके पास वो चीज़ें होंगी वो एक स्टैंड अलोन टावर के पास नहीं है. उस वजह से उसका कभी मार्केट फ्लक्चुएशन में प्राइस डिफरेंस नहीं आएगा. आपकी जो कॉस्ट होती है बेसिकली वो कम हो जाती है जब आप मेंटेनेंस पे करते हो एक कम्युनिटी में, वेयर इन स्टैंड अलोन टावर यू पे हायर अमाउंट ऑफ सर्विस चार्जेस एंड इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है कम्युनिटी में बिकॉज कम्युनिटी में एडेड वैल्यूज और एमिनिटीज होते हैं. सो दिस आर वेरी सिंपल एस्पेक्ट्स टू लुक इनटू, बट this is very important for you guys to understand because this is something which is very new for you. So to understand, because हम बाकी जैसे इंडिया में हम टाउनशिप्स बोलते हैं कम्युनिटीज को, और टाउनशिप इज अ थिंग जहाँ पे आपने देखा होगा कि कोई भी टाउनशिप जब इंडिया में लॉन्च होती है उस टाउनशिप का सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन होता है, whereas कोई एक स्टैंड अलोन टावर है. So this is what we have already seen traditionally in the market, and that is what Dubai is also doing. So it makes very good sense for you as an investor or end user as well to make sure that you're investing into a community rather than standalone tower. But yes, there are some very good options of standalone towers as well if you're looking for luxury branded residences. I mentioned it to you. We have Mercedes residences, we have Bugatti residences, we have Jacob and Co, Bentley residences, Arsenal residences. These are some of the very few examples where you can invest into a standalone tower as well and can expect a good appreciation over the years. And now we will discuss the top developers in Dubai. When we consider the top developers, these developers have delivered properties in the past. They have a very stable record of appreciation, rental yield, maintenance of their properties, and what we say international value. And because of these aspects only, we can rely on these developers when we make any investment. So if you have any inquiry about any one of these developers, you can always get in touch with us on our numbers, on our mails, and we'll make sure to give you an idea about what these developers are doing in Dubai real estate market to enhance the lifestyle of Dubai altogether.